नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ के मिशन निवेश से। मुंबई में सीएम योगी के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। थोड़ी ही देर में मीडिया और उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स ताज होटल में पहुंचे हुए हैं। कुछ अहम उद्योगपतियों से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं योगी। यूपी जीआईएस को लेकर सीएम योगी करेंगे रोड शो। दोपहर 2 बजे तक चलेगा सीएम योगी का रोड शो। शाम 6 बजे फिल्म निर्माता, निदेशक और कलाकारों से भी मुलाकात करने का पूरा कार्यक्रम है। तो थोड़ी ही देर में मीडिया और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो मिशन निवेश लगातार जारी है। जहां विदेशों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके बाद अब देश की बारी है। देश के अलग अलग प्रदेशों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां निवेशकों को लुभाने और उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और ये पहला रोड शो भी होने जा रहा है देश में। घरेलू रोड शो ये देखने को मिलेगा मुंबई में, जिसके बाद अलग अलग प्रदेशों में भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और अभी थोड़ी ही देर में जहां बैंक अधिकारियों, उद्योगपतियों से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक, ये संवाद देखने को मिल रहा था। और थोड़ी ही देर में मीडिया और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। ताज होटल में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए हैं और माना यह भी जा रहा है कि कुछ उद्योगपतियों से व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। और इसी कार्यक्रम के बाद रोड शो का आयोजन होगा। जीआईएस रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और इसके बाद 6 बजे फिल्म निर्माता, निदेशकों, कलाकारों से उनकी मुलाकात रहने वाली है। कहीं ना कहीं देखिए, हर किसी को जीआईएस को लेकर उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर प्रदेश किस तरह से उद्योग लगाने के लिए, उद्योग जगत के लिए, निवेश के लिए एक ऐसा प्रदेश जो हर सुविधा, ऐसा वातावरण उपलब्ध करा रही है। और कहीं ना कहीं सबको इसकी जानकारी देते हुए और इस वक्त ताज होटल में ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। Biggest hub of manufacturing of mobiles and home appliances. So this is another significant strength, and therefore we are looking at investments into the semiconductor fab units also, and we have an attractive semiconductor fab policy also, and which is providing better incentives than any other states. ITS is another sector in which we are trying to seek investments because of the network of expressways and dedicated corridors, etc., which we have created. The logistics and warehousing opportunities have come up, and we have recently come up with a policy which is providing incentives for building private freight terminals, for berthing terminals, for logistic parks, etc. This is one area which can be looked at. Data center policy has been picked up very well, and we have the entire country's capacity equivalent to that coming up in Noida, Great Noida area. So this is another area. We have one of the best policies available. Agro and food processing is an obvious choice because basically UP is an agrarian state. EV is another area in which we are seeking significant investments, and we have a very vibrant EV policy. Close to western part of UP, there is a significant ecosystem available, and we seek participation in the EV manufacturing hubs also in UP. Renewable energy is another area. We have policies from bioenergy to solar energy also in place, and UP has in Bundelkhand and in Mirzapur Sonbhadra area, a lot of potential is there for putting up these plants. Textile and apparels has been our strength, and we have updated the policy and made it more lucrative. Tourism is an obvious choice, and we have come up with a policy which is now enabling the heritage sites also to be picked up by the private segment and developed into resorts and sites also. This will be through a bidding process, and UP, every district has a lot of potential where these can be picked up. Pharma and healthcare, education, skills. On the innovation ecosystem also, we have put in a lot of investments. We have developed center of excellences, we have developed incubators, we have tied up with various institutions,
And now the result is that about 7,600 startups are registered in UP, and this ecosystem is only growing. Real estate obviously is another choice, and in the film side also, Mumbai being the destination of film producing, we are coming up with a film city. The bids are already out. This is being developed in 1,000 acres of land. And we are seeking investment there. The last date of the completion of the bid is 7th of January 2023. And we hope to get good studios to be able to create a film city there in UP. Now, I'll just like to make और ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारी संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ चुकी है। फरियल, अभी क्या कुछ अपडेट? देखिए, 2 दिवसीय दौरा है और दूसरा दिन है आज, और आप तमाम कार्यक्रमों में भी मौजूद हैं। उद्योगपतियों से और मीडिया से थोड़ी देर में संवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। जी बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है और आप देखते हो कि अभी जो है वो पीपीटी दर्शाते हुए जो है वो उद्योगपतियों को जो है वो दर्शाया जा रहा है कि किस तरीके से यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, और साफ तौर पर ये भी बताया गया है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्मेशन में यूपी जो है वो नंबर 2 स्थान पर है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जो पीपीटी है उसको प्रदर्शित करते हुए ये ज्यादातर बताया जा रहा है किस तौर पे यूपी जो है वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, और जितने भी जी। उद्योगपति है वो अंदर बैठे हुए जिसे संबोधित किया जा रहा है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो अभी भी बहुत सारे जो उद्योगपति है उन लोगों की जो लाइन है वो अभी भी इधर मेंटेन बनाई गई है। तो पूरा जो कॉन्फ्रेंस हॉल अंदर का है वो पूरा जो है वो भरा हुआ है। और साथ ही साथ अभी भी फिलहाल जो है वो उद्योगपति जो कुछ है, जो इन्वेस्टर्स है वो अभी भी कतार में खड़े हुए हैं। तो ये जो कतार देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से जो यूपी गवर्नमेंट का जो निवेश क्रांति का जो सपना देखा जी। गया है, उसकी जो पहल शुरू से की गई है उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो ये इन्वेस्टर्स के कतार को देखते हुए आप साफ तौर पर कह सकते हो। अंदर जो है वो कार्यक्रम जारी है यूपी गवर्नमेंट की ओर से, और जो बाहर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स विदेश कंपनीज जो आए हैं वो यहाँ पर मौजूद है, कतार में खड़े हुए हैं। ये सारे लोग अंडर सीएम योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर जी। मौजूद है। और अगर आप देखोगे तो जो हॉल भी है वो भी पूरा जो है वो पूरा जो है जो लोगों से भरा हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये किस तरीके से ये जो अंदर कार्यक्रम चल रहा है पूरी देर में जो है वो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो यहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। ये जो हॉल है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, और बाहर भी हमने देखा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने देखी कि किस तौर पे इन्वेस्टर्स की जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो साफ तौर पर जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स, जो पहली पहल मुंबई शहर से की गई है, क्योंकि विदेश में तो अच्छी पहल यूपी में योगी सरकार को मिली ही थी, लेकिन अभी देश से जो लोगों ने बड़े बड़े शहरों में रोड शो करके जो निवेश लाने की जो सपना देखा है यूपी जी। सरकार ने, जिस तरीके से जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जाने वाला है नेक्स्ट मंथ में यूपी में, तो कहीं ना कहीं जितने इन्वेस्टर्स आप अभी देख रहे हैं वो तो इससे तो आप साफ तौर पर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो यूपी में जो होने वाला है, लखनऊ में जो होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें जरूर शामिल होंगे और कहीं ना कहीं अपना योगदान जिस तौर पर वो लोग दे सकते हैं उस तौर पर देंगे। और यूपी का जो सपना है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो साकार करने में यूपी सरकार और योगी सरकार की जो है वो खांडे को खांडा लगा कर जो है उनका जो सपना है वो जरूर साकार करेंगे। बिल्कुल फरियल, इसके साथ ही साथ अगर जिक्र करें फरियल की, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कुछ उद्योगपतियों से व्यक्तिगत तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। जी, अगर हम बात करेंगे तो ये कार्यक्रम जो है 12 बजे का जो है वो सीएम योगी जी का रोड शो होना था, लेकिन ये कार्यक्रम जो है वो कुछ लेट शुरुआत हुआ। तो ये जी। अभी जो है वो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इस कार्यक्रम से पहले व्यक्तिगत रूप से सीएम योगी ने कुछ उद्योगपति, अहम उद्योगपति जो उनके लिस्ट में थे उनसे मुलाकात की है। जी। अभी उनसे मुलाकात तक करके वो जो है वो जो दूसरे उद्योगपति है उनको जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, जो ताज होटल है मुंबई के, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है उनको संबोधित करेंगे। और व्यक्तिगत रूप से जो उद्योगपतियों से उन्हें मिलना था वो मिल चुके हैं। जैसे ही ये जी। कार्यक्रम, जैसे ही सीएम योगी जी जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म करते हैं, ये जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको तो संबोधित करते हुए उनका जो ये कार्यक्रम खत्म होता है उसके तुरंत बाद जो है उनका मुंबई में रोड शो होना है। तो अभी जो निकाय है वो ये है कि वो इस
जो इन्वेस्टर्स अंदर बैठे हुए हैं, जो कतार लगाकर खड़े हुए हैं, वो सारे एक्साइटेड है कि सीएम योगी अपने यूपी को किस तरीके से इनके सामने पेश करते हैं, किस तरीके से इनका जो ध्यान है वो अपनी ओर जी। आकर्षित करते हैं। और क्योंकि सीएम योगी जी ने जो फ्रंटलाइन पर आए हैं और वो तो खुद आमंत्रण देने आए सारे इन्वेस्टर्स को, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हो, प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स को, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हो, साथ ही साथ बैंक के अधिकारी हो, इन सबको वो खुद न्योता देने आए हैं कि वो आए यूपी में जो है वो निवेश करें। तो अब देखना ये होगा कि सीएम योगी जो है वो इस सारी चीजों में कितने सफल होते हैं और किस तरीके से वो यूपी की अच्छी छाप जो है वो इन्वेस्टर, अधिकारी और फिल्म जगत के लोगों पर छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल फरियल। और देखिए फरियल, जिस तरह से बड़ी संख्या में उद्योगपति पहुंच रहे हैं, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उद्योगपतियों में भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने की वो ललक भी देखने को मिल रही है, और वो भी एक अच्छा माध्यम, एक अच्छी जगह उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं, तभी इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति पहुंच रहे हैं। फरियल, इसके साथ ही साथ चूंकि देखिए रोड शो का आयोजन हो रहा है, रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, और शाम को 6 बजे जहां पर फिल्म निर्माताओं, निदेशकों और कलाकारों से भी उनकी मुलाकात का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कहीं ना कहीं फिल्म जगत को किस तरह से उत्तर प्रदेश में वहां पर आकर वो निवेश कर सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, इसकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। ये पूरा कार्यक्रम कहां पर आयोजित होगा, ये पूरा जो मीटिंग है ये कहां पर रखी गई है? देखिए जो रोड शो है होना है वो ताज होटल से ही ताज होटल के जो नीचे रास्ता है वहीं से शुरू होने वाला है और यहीं पर आकर खत्म होगा। और रोड शो के बाद जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो है वो इस होटल में ही रहेंगे और यहाँ पर ही फिल्म के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो कि प्रोडक्शन हाउस के जो मेन लोग आने वाले हैं वो यहीं पर आएंगे और वो यहीं पर उनको संबोधित करेंगे। जी। जिसके बाद जो है उसके बाद फिर वो सीएम योगी जी जो है वो यूपी के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हम रोड शो की बात करें तो जैसे ये कार्यक्रम खत्म हो गया वैसे ही रोड शो की शुरुआत होनी है। उसको लेकर अगर हम नीचे जाए, होटल के नीचे अगर हम आपको थोड़ी देर में तस्वीर उसकी भी दिखाएंगे किस तरीके से भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जी। किए गए हैं। तो होटल की तरफ से भी जो देखेंगे आप सिक्योरिटी के इंतजाम करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हॉल में भी जो है पुलिस बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद है। और जी। नीचे हम जैसे ही थोड़ी देर में रोड शो की तस्वीरें लेने के लिए पहुंचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तौर पर मुंबई की पुलिस जो है वो सड़कों पर खड़ी हुई है ताकि जितनी भी सारी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हो उसमें वो सफल हो और कोई किसी की रोड शो में कोई दिक्कत नहीं आए। और आम लोग जो भी है मुंबई वासी जैसे ही लोगों को पता चला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी मुंबई दौरे पर और आज वो रोड शो करने वाले हैं तो जी। वैसे ही आम लोगों की तादाद भी है थोड़ी जो है वो रास्तों पर बढ़ गई है ताकि वो एक झलक जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी की देख पाए। ठीक है। ठीक है फरियल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो देखिए मीडिया और उद्योगपतियों से थोड़ी ही देर में संबोधन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और मिशन निवेश लगातार जारी है। मुंबई का 2 दिवसीय दौरा और आज दूसरा दिन है जहां पर इस वक्त उद्योगपतियों से संवाद करते हुए कार्यक्रम में उद्योगपति बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद रोड शो का आयोजन है और इस रोड शो को लेकर भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बड़ी तादाद में इस वक्त इन्वेस्टर्स ताज होटल पहुंचे हुए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 16 से 17 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। इस महीने के अंत में जेपी नड्डा बतौर पार्टी अध्यक्ष अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर होगा मंथन। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है 16 और 17 जनवरी को होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल विस्तार पर मुहर लग सकती है। तो इस महीने के अंत में जेपी नड्डा बतौर पार्टी अध्यक्ष अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अब ये कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस पर मुहर लगना संभव माना जा रहा है और बैठक में कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव पर भी चर्चा होगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा।
यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज शामली के एलम से शुरू हुई। एलम में जा चलकर कांधला कस्बे में बस स्टैंड के पास पहुंचने के बाद भारत जोड़ो यात्रा कैराना की तरफ रवाना हो गई है। एलम और कांधला के बीच में कई जगह पर यात्रा का स्वागत करने के लिए लोग खड़े रहे। कांधला और एलम के बीच में शिवालिक ढाबा पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के झंडे और फूलमाला से स्वागत किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कैराना के लिए रवाना हो गई है। ये लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अति उत्साह में एक जात विशेष की भीड़ नहीं है, एक धर्म की भीड़ नहीं है। सब ये मिलजुल कर लोगों में नफरत के खिलाफ जो राहुल जी का प्रयास है वो सफल होता देख रहा हूँ मैं। जो साहब ने कहा है और हम स्वागत करेंगे और होना भी चाहिए। हमारे ज़िले में एक अतिथि आ रहे हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा पे आ रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनका स्वागत करें। ढोल नगाड़े और मालाओं से हम उनका स्वागत करेंगे। ऊपर से चौथ साहब का संदेश हो गया है तो हमारे लिए और खुशी की बात है। आप देखिए आगे विजुअल आगे दिखाइए तो आपको समझ में आएगा। हजारों लोग खड़े हैं और यही नहीं, यात्रा कन्याकुमारी से चल रही है तब से हजारों लोग खड़े हैं। हाँ। आपको लगता है ये यात्रा एक बड़ा परिवर्तन ला रही है? बिल्कुल ला चुकी है। राहुल गांधी जी की छवि जो गढ़ी गई थी झूठी, वो बदल गई। तो यात्रा बहुत शानदार है और इस यात्रा का बहुत व्यापक मैसेज है। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का ये निर्देश हुआ है कि हम पार्टी के सभी पदाधिकारी और विधायक सब लोग मिलकर कल जो है हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर हम सब लोग इकट्ठा होंगे और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आएंगे। हम सभी लोग उनका वहाँ पर स्वागत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ के शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सबसे पहले अभी तस्वीरें क्या, फिलहाल क्या अपडेट, अभी भारत जोड़ो यात्रा कहां पर मौजूद? हाँ मकान होना चल भाई, रोड है यू के सवाल जोड़ो यात्रा में बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये भारत यात्रा का एपिसोड इसलिए कहूंगा क्योंकि 3 दिन के लिए यहाँ पर 3 दिन के लिए ये लोग यहाँ पर आए और अब यहाँ से सीधा पानीपत से हरियाणा में प्रवेश कर जाएंगे। जयराम नरेश, जब भी कोई तीखे सवाल पत्रकारों ने पूछे तो थोड़े से जयराम नरेश असहज होते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने कहा है कि अनेकता में एकता को लेकर ये भारत यात्रा जो है वो बड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जितने भी लोग हैं वो सब इससे जुड़ते जा रहे हैं। और जिस गांव जो कांधला के आगे कैराना के पास है, कैराना हमेशा से सेंसिटिव रहा है और बीजेपी की थाली में वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कैराना पलायन को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रही है। उस जगह से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, राहुल गांधी का आना, हजारों लोगों का इसमें शामिल होना बता रहा है कि अनकहे बिना कुछ कहे वो उस मुद्दे को टच कर गए जिस मुद्दे पर खुलेआम बीजेपी को और आरएसएस को घेरते थे। वहीं जयराम नरेश ने साफ तौर पर कहा और राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अखिलेश नारायण सिंह है उन्होंने भी सिटी न्यूज़ 1 के साथ बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिवली कहा कि हम आरएसएस मुक्त भारत नहीं चाहते, हम आरएसएस के साथ भारत चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा हमें बदलनी है और विचारधारा को बदलने के लिए ये काम हमने किया है। अगर बीजेपी और आरएसएस अपनी विचारधारा नहीं बदलते तो ये यात्रा पूरब से लेकर पश्चिम तक चलेगी और जिस सभी वर्गों का इन्हें सहयोग मिल रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा से लोग जुड़ते जा रहे हैं। एकता में अनेकता की जो बात कांग्रेस सदियों से करती आई है उसको लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते बातों में उत्तर प्रदेश की सड़कों को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी कि वाकई योगी सरकार का तारीफ काम है कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनानी थी, गड्ढा युक्त सड़कें बना दी हैं योगी शासन में। इन सड़कों को देखकर हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ गांव का आदमी
किसान गन्ना डालने जाता है और जब इन सड़कों पर निकलता है तो उसे खासी परेशानी होती है। यानी कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को इनडायरेक्टली टच करते हुए आई 3 लोगों की टीम और 20 वो लोग जो भारत यात्रा में कन्याकुमारी से लेकर शामिल हुए हैं। लेकिन जब हमने अखिलेश नारायण सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे पूछा कि जितने भी 12-13 राज्यों में से आप गुजर कर आए हैं उनमें पर्सनली कैसा अनुभव हो रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको बहुत अच्छा अभिनंदन, बहुत अच्छा सहयोग मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश इन 12 के 12 राज्यों में विकास के मामले में सबसे पीछे है, क्योंकि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि सड़कें सही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी है, क्योंकि किसान गन्ना मिलों के चक्कर काट काट के थक गया है। यानी कि ठीक है के बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल मंत्रियों का पहला सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। वाटर विजन 2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा का विजन है। इससे जनता में जब ये सब देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस प्रकार की योजना हो या अभियान हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे उतना ही प्रभाव पैदा होगा। बुधवार शाम राजस्थान के पाली स्थित सर्किट हाउस में सीएम अशोक गहलोत ने जन सुनवाई की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने जनता के बीच पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फौरन उन समस्याओं को समाधान के निर्देश भी दिए। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट से भी जनता की समस्याओं की जानकारी ली। सीएम नीतीश कुमार अपनी 2 दिवसीय प्रवास यात्रा पर हैं। इसके तहत वो सीतामढ़ी भी पहुंचेंगे। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास में नीतीश कुमार के विशेष स्वागत की तैयारी की गई है। छात्रावास की दीवारों पर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की पेंटिंग बनाई गई। नवनिर्वाचित मेयर रौनक जहां ने इस बीच छात्रावास पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। नायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास सीतामढ़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट का कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ तैयारियाँ चल रही है। और यहाँ सारे बच्चे जो हमारे यहाँ छात्रावास में आवासित जो छात्र हैं सारे लगे हुए हैं अपने मुख्यमंत्री जी के स्वागत में, कि उनके द्वारा ये जीर्णोद्धार बनाया हुआ ये छात्रावास है। तो आज हमारे बीच में वैसे महापुरुष आ रहे हैं, तो उनका स्वागत हम कितना अच्छी तरह से कर सकें। सारे हम चूँकि हम छात्रावास अधीक्षक हैं तो हमारी जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है। नायक आर्टिस्ट भी हैं, वो सरकार की जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनकी जो एजेंडा है, जैसे बाल विवाह हो गया, नशा मुक्ति हो गया, जल जीवन हरियाली हो गया, दहेज प्रथा हो गया, सारे बाउंड्री पे हमने पेंटिंग लिखकर फोटो बनाकर और सरकार की योजना को हम जारी कर रहे हैं। 4 दिनों से कर रहे हैं।
हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम। बिहार के मुख्यमंत्री अपने 2 दिवसीय प्रवास यात्रा के तहत बुधवार को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने यहां गंडक नदी के समीप निर्माणाधीन इंटरनेशनल सेंटर के कार्यों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्य में हो रही देरी की जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्य में देरी को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा उन्होंने यहां पर्यटन और टूरिज्म बढ़ाने पर जोर भी दिया। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।